Hello friends, let us start today's lesson with certain pictures. So first set, you know it very well. Cricket set, you know that also very well. Pencil color sets and the set of items which you take in the school like water bottle, tiffin, compass, etc. And this is bangle set. So we have to learn today the chapter set. Pencil sets as you have been using and also the kitchen set. So set word is not new for us. What are we going to learn today? We'll learn in detail what sets are. So let us define set. Set is a well-defined collection of objects, right? And each object in the set is called as element of or member of the set. Now here there are 12 color pencils. So each color pencil will be called as element of the set or member of the set. So now we know what is a set. Set is a collection of well-defined objects. Right? What do I mean by well-defined? Well-defined means certain things that can be clearly understood, defined. Now in our textbook we see collections like collections of odd natural numbers, collection of whole numbers. Now here also everything here is well defined. If it is gas stove or it is vessel kept on the gas, everything is well defined. We can count each and everything, right? Barbie set, whatever the items there are there, you can count each and everything. So today in the chapter we are going to learn introduction of set, method of writing sets, and we'll start with practice set 1.1. The best part, you have been using the word set without the knowledge that what set means. So now we know what is a set. Set is a collection of objects that is well defined. Now, collection of elements which are not well defined do not form a set. Such sets usually contain relative terms like easy, good, favorite. For example, collection of good books in library. What do I mean by good books? I being a maths teacher, my subject books, maths books are good books for me. Somebody from different field will be having different taste and those books will be good for that person. So it is a relative term whose meaning will vary from person to person. Happy student, intelligent person or a student. It's really absolutely relative term. Now, the word happy and brilliant are relative terms. Why it is relative? Because the exact meaning of these words to be happy or to be brilliant is totally different from person to person. Therefore, these are not sets. That is, happy students or brilliant student of a class or happy children of the village is not a set. Now, there is a single bottle. Can it also become a set? Yes, it is well defined. So, it is also a set. Again, these are coloring objects, right? Which most of the students use. Now, this color plate belongs to this set. How is a set noted or denoted? We'll learn now. Generally, the name of the set is given by using capital letter like A, B, C. So, whenever you want to denote a set, it has to be a capital letter. Elements of the sets. What do I mean by elements of the sets? Members of the set are called as elements of the set. We have already seen. So, color brush is an element of this set. Let me decide this set as A. So, I call that color brush or sharpener or pencil or marker. All this belongs to that set A. Suppose I take this water bottle. Call it as set B. This water bottle will not belong to
द फर्स्ट सेट विच वी हैड टेकन एज ए। इसका मतलब क्या, उस सेट के अंदर में जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर बिलोंग करते हैं। अगर आप वाटर बॉटल देखते हैं उसके अंदर नहीं बिलोंग करती है, उसके अंदर का नहीं है मेंबर। सो आपको नहीं है लिखना भी आना चाहिए, इसीलिए हम एक सिंबल यूज करते हैं और उसको वर्ड्स में भी लिखते हैं। A is a element of set A, then we write it as symbolically A belongs to A। ये E जैसा वर्ड जो है इसको belongs to पढ़ते हैं। उसी तरह से अगर ये A उस कैपिटल सेट A में नहीं है, उस सेट में नहीं है जिसको कैपिटल A से डिनोट किया है, तो हम लिखते हैं A does not belong to कैपिटल A। अब यहाँ हम कैसे लिखेंगे, अगर हमने ड्राइंग का सेट A डिनोट किया तो हम लिखेंगे वाटर बॉटल डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A। अगर हमने इस वाटर बॉटल के सेट को B डिनोट किया तो हम लिखेंगे कि ब्रश डज नॉट बिलोंग टू सेट B। कलर पेंसिल्स डज नॉट बिलोंग टू सेट B। बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू, और डिटेल में देखते हैं। Now, consider a set A 3, 5, 7, 11। इसका मतलब क्या हुआ, 3 is a member of set A, that means we can write 3 belongs to A। और इसको पढ़ते कैसे हैं, it is read as 3 belongs to A। Symbolically कैसे लिखते हैं और इसको ऐसे पढ़ते हैं, और डिटेल में देखते हैं। 4 is not a member of A, इसका मतलब 4 does not belong to A। इसको पढ़ते कैसे है, does not belong to A। उसी तरह से आपने देखा 11 is element of A, it is written as 11 belongs to A। Again, अब हमने ये चीज़ें पढ़ ली। अब ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के लिए है, ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए। अगर वैल्यूज़ आप डाल पाएँ, 2 वैल्यूज़ ही डालनी है, belongs to, does not belong to, belong to, does not belong to। अब मेरे ख्याल से आप रेडी हैं आंसर्स के साथ। हम देखते हैं आंसर्स। पहला 1 belongs to A, 4 does not belong to A, 11 does not belong to A, 3 belongs to A। आपके सारे आंसर्स करेक्ट आ गए, वेरी गुड। अब 1-2 और क्वेश्चंस दिए हैं, इनको भी ट्राई कीजिएगा। ये नोटेशन, ये सिंबल या ये डायग्राम आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो सर्कल के अंदर कुछ नाम लिखे हैं, नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल्स, रियल नंबर्स, इरैशनल नंबर। आपने ये सब डिटेल में पढ़े हैं, पर इनको वापस से इसलिए रिवाइज करना ज़रूरी है बिकॉज ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं ये सेट्स को, किस तरह के सेट हैं। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 डॉट 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 मतलब 1 2 3 उसके बाद में और बढ़ता चला गया, इनफाइनाइट नंबर्स तक ये बढ़ रहा है। और 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं और वो इनफाइनाइटली बढ़ते हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद आपने होल नंबर्स पढ़ा हुआ है। जब आप नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये इनफाइनाइटली बढ़ रहा है, तो होल नंबर्स का सेट को हम बोलते हैं कि इट इज़ ए इनफाइनाइट सेट। ठीक है, रिटन बाय W। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीजर्स का सेट, I से डिनोट करते हैं, -3 -2 -1। अगर आपको नंबर लाइन याद होगी तो उस पर डाले हैं आपने ऐसे नंबर्स, राइट, इंटीजर्स। उसी तरह से Q इज़ ए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, हर वो नंबर जो P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, या हर वो स्क्वायर रूट जो नॉन टर्मिनेटिंग है मगर रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है, तो उस नंबर को भी हम एक रैशनल नंबर बोलते हैं। हमने इरैशनल नंबर पढ़ा था पाई, 22/7। आप डिवाइड करते चाहिए, ये डिवीजन ख़त्म नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर, √2, √5, √77, √150, ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं। अब हमने जो देखा
ये पूरा जो सेट है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। सेट्स को कितनी प्रकार से लिखा जा सकता है? सेट्स को आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, और दूसरा है रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। यानी लिस्टिंग मेथड या और रोस्टर मेथड, रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। अब इस प्रकार से सेट थोड़ी देर पहले भी हमने लिखा था। ये क्या है? ये लिस्टिंग मेथड है बच्चों। ये लिस्टिंग मेथड ऑफ राइटिंग सेट है। इसमें क्या करते हैं? इसमें आप लिखते हैं वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट इन करली ब्रैकेट, को करली ब्रैकेट बोलते हैं। करली ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? ईच एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। हर बार हम उसको लिखते हैं एलिमेंट को और कॉमा से सेपरेट करते हैं। 3 लिखा, कॉमा से सेपरेट किया, 5 लिखा, कॉमा से सेपरेट किया। अगर एंड हो गया वहीं रुक जाते हैं। अगर इनफाइनाइट सेट है तो डॉट 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 डाल देते हैं। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सेट है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं उसको। अगर आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। कौन से ऑड नंबर्स हैं? कितने ऑड नंबर्स लेना है? बिटवीन 1 and 10। इस सेट को आप कैसे लिख सकते हैं? आपने इस सेट को लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3, 5, 7, 9, या आपकी मर्जी। हमको 7 पहले याद है, आप 7 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 9 लिखिए। ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं उसको, राइट। तो हमने देखा लिस्टिंग मेथड। एक बार फटाक से उसको रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा हमने। लिस्टिंग मेथड में हम करली ब्रैकेट के अंदर में सेट को लिखते हैं, हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं। ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक ही नंबर को एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं। अब रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड क्या है? ठीक है, ये हम अभी देख चुके हैं। अब रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? इस प्रकार से जब सेट को लिखा जाए तो उसको हम बोलते हैं रूल मेथड। इसको भी हम करली ब्रैकेट में ही लिखते हैं। इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल्स। माने क्या? हम सारे यहाँ पे 3, 5, 7, 9 सारे लिखे ना, यहाँ सारे नहीं लिखते। यहाँ हम रूल बना लेते हैं उसका। कैसा? इसको कैसे लिखते हैं? हम करली ब्रैकेट बनाते हैं और एक वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पे हमने x लिया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट, n। अब ये नेचुरल नंबर है आपका और 1 इज़ लेस दैन x, मतलब 1 जो है वो x से छोटा है, यानी x जो है वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है मतलब 2 से स्टार्ट हो सकता है। 2, 3, 4 नेचुरल नंबर आपने पढ़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर जो है 1 से बड़ा माने 2 आएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 से छोटा है क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना लेस देन 10। सो आपका सेट बन जाएगा जो है वो लिखा जाएगा सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n, कॉमा दूसरी प्रॉपर्टी उसकी, उसके साथ क्या होना चाहिए? x should be in between 1 and 10. This is read as set A is set of all x such that, पढ़ते कैसे हैं इसको? set of all x such that, right? ये लाइन को पढ़ते हैं such that x is a natural number between 1 and 10. Is it clear? Okay. Now we will see further. Very important thing given in red to you. If element comes more than once, then remember it is customary to write the element only once. That means इतने बड़े बड़े चीज़ों की अपेक्षा सीधी सीधी बात सिंपल भाषा में एक अगर चीज़ सेट में 2, 3, 4 कितनी बार भी आती है तो उसको उतनी बार ना लिखते हुए सिर्फ एक बार लिखा जाता है। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। इन द वर्ड रिमेंबर, राइट, वर्ड है रिमेंबर।
REM, ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं, राइट। कितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं इसमें? इसमें R आता है, E आता है, M आता है, बाद में E 2 बार और आता है और M फिर से आता है, हम 2 बार नहीं लिखते, फिर हमको B दिखाई पड़ता है। तो इस सेट को लिखने के लिए हम लिखेंगे, लिस्टिंग फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे A इज इक्वल टू R, E, M, B। अगर वो रूल मेथड होता तो हम सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज a letter of the word remember लिख देते हैं, ठीक है। अब एक और करते हैं। अब यहाँ पे क्या है? B is set of all x such that x is a prime number between 1 and 10। बार बार आने वाला क्वेश्चन है। क्यों बार बार आता है? बिकॉज यहाँ सिली मिस्टेक होती है। और सिली मिस्टेक क्या होती है? ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स हमको बहुत अच्छे से आते हैं, प्राइम नंबर में हैं बार बार गलती होती है। गलती ये होती है पहली कि हम 1 लिख देते हैं कभी कभी। 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। या हम 2 भूल जाते हैं बिकॉज 2 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ इवन नंबर एंड अ प्राइम नंबर, राइट। तो हमारा सेट बनेगा 2, 3, 5, 7। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अच्छा, एक बार वापस याद कर लें प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर है बच्चों जो कि आपके पास अपने आप से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। यानी प्राइम नंबर को आप डिवाइड कर सकते हैं आइदर 1 से और इटसेल्फ से। अब वापस से ध्यान से समझ लेते हैं प्राइम नंबर, ताकि हम ये गलती दोबारा ना करें। 2 जो है वो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। 3 1 से डिवाइड होगा या 3 से ही होगा। 5 और 7 भी ऐसे ही हैं, या तो 1 से डिवाइड होंगे या 5 से या 7 से रिस्पेक्टिवली डिवाइड होंगे। सो ऐसे नंबर्स जो अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब हमने आपको 2 सेट्स दिए हैं और वापस से उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। बच्चों, ये मैथमेटिक्स एट योर फिंगर टिप्स एक ऐसा चैनल है जहां आप मज़ेदार तरीके से मैथ्स पढ़ेंगे, राइट। मज़ेदार मैथ्स में हमारा कहना ही है कि मैथ्स समझकर, बेसिक्स समझकर, उसके कंसेप्ट्स को समझकर उसको अगर अप्लाई करना सीख जाएं तो मैथ्स एकदम बच्चों का खेल है। बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। अब डिटेल में वापस देखते हैं। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। डिवीजन में आने वाले वर्ड डिवीजन में आने वाले अल्फ़ाबेट्स कितने? आपको लिस्टिंग में रूल लिखना है तो आपको इस प्रकार से x सच दैट x इज, y सच दैट y इज, ये तो लिखना है। हर बार करली ब्रैकेट भी डालना है, पर लिस्टिंग अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे D, I, V, I नहीं लिखेंगे। वापस रिपीट हो रहा है ना, I रिपीट हो रहा है, देखो, हाँ। S, फिर I नहीं लिखेंगे, O, N। इस तरह से आप डिवीजन को लिखेंगे। उसी तरह से आपके पास क्वेश्चन है y इज ए नंबर, सेट B इज सेट ऑफ ऑल y's सच दैट y इज ए नंबर। किस प्रकार का नंबर है ये? y² इज इक्वल टू 9। तो हम इतने आदी हो चुके हैं y² इज इक्वल टू 9 इज को सॉल्व करने के, y² इज इक्वल टू 9 सो y इज इक्वल टू 3। कॉमन मिस्टेक, हम -3 भूल जाते हैं, राइट। सो ध्यान रखिए, y² इज इक्वल टू 9 सो y इज इक्वल टू आइदर -3 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल z सच दैट z इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड इट इज लेस देन 30। अब 5 का मल्टीपल मतलब क्या? 5 का मल्टीपल मतलब 5 के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स, 5, 10, 15, 20, 25, राइट। सो ये आपका सेट बन जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 पे रुक गया। क्यों 30 पे रुक गया? बिकॉज उसने बोला लेस देन 30, राइट। सो आपका सेट तैयार हो गया 5, 10, 15, 20, 25 ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब ये भी एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है। ये एक्टिविटी, मेरी कोशिश है कि आप इस एक्टिविटी को खुद कीजिए। पॉज कीजिएगा वीडियो, एक्टिविटी सॉल्व कीजिए, फिर हम डिटेल में देखते हैं इसके आंसर आते हैं क्या, राइट। अगले
वापस से ये एक्टिविटी आपको दी हुई है। ये एक्टिविटी आपको देके हमने आपको फिर से सॉल्व करने के लिए कहा, राइट। पहला तो आंसर सॉल्व है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये सारे इवन नंबर्स हैं, लेस देन 15। अब आपका डाउट आएगा, टीचर 15 क्यों लिया आपने, 16 क्यों नहीं लिया? या इवन नंबर लेस देन 16 भी आप ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक में 15 दिया हुआ है, इसीलिए हमने उसको रिपीट किया। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 to 20। परफेक्ट स्क्वायर आपको आता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 20 से बड़ा है, तो आंसर आ जाएगा 4, 9, 16। अब प्रश्न आ गया, भाई 1 क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसने बोला है बिटवीन 1 and 20, तो 1 आप नहीं लेंगे। AEIOU वॉवेल्स है, आप जानते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट, कलर ऑफ रेनबो, आपने विबग्योर पढ़ा हुआ है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। अगर आप सारे पहले अल्फ़ाबेट को निकालेंगे आपको दिखाई पड़ेगा VIBGYOR, विबग्योर, कलर ऑफ रेनबो। उसी तरह से इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। नंबर लाइन याद कीजिए, इजी होता है। -3 के बाद -2, -1, 0, 1, 2। अब वापस से ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल को अगर आपने ध्यान से देखने की आदत बनाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखने की, आंसर के ऊपर ध्यान मत दीजिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, राइट। ये हमारी कॉमन मिस्टेक है। 1, 8, 27, 64, 125 ये सारे क्यूब नज़र आ रहे हैं। यस, सो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। आपके पास सारे आंसर्स रेडी हैं, आपने सॉल्व कर लिए हैं होपफुली। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब आपको प्रॉब्लम सेट पे पहुंच जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट का, सेट ऑफ इवन नंबर्स आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, राइट। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। आप कैसे सॉल्व करेंगे? रोस्टर मतलब लिस्ट बनाना है, रोस्टर मतलब लिस्ट बनाना है। एक सेंटेंस याद कर लीजिए, रोस्टर मतलब लिस्टिंग, रोस्टर मतलब लिस्ट, सेट बिल्डर मतलब रूल। अगर आप इसी सेंटेंस को 4-5 बार बोल लेंगे, रोस्टर मतलब लिस्टिंग, रोस्टर मतलब लिस्टिंग, लिस्टिंग मतलब रोस्टर, उसी तरह से रूल मतलब सेट बिल्डर, सेट बिल्डर मतलब रूल। अब तो इवन नंबर्स लिखना है आपको, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। आप कितना भी आगे तक जा सकते हैं, ये सेट आपने स्टार्टिंग में भी देखा हुआ है। इवन प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50। अरे 1 to 50 रहने दो, 1 to 100 रहने दो, कोई भी नंबर। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही नंबर है एंड दैट इज़ 2। क्यों ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखा जा रहा है? बिकॉज उसने क्वेश्चन में पूछा है रोस्टर, लिस्टिंग, तो आप दूसरा नहीं डाल सकते। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स माइनस वाले आ जाएंगे, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। नंबर लाइन को याद कीजिए, इजी हो जाएगा। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सारेगामा सुर आपको आता है। सारेगामा पधा नी सा, सा रिपीट नहीं होगा, सारेगामा पधा नी सा हम हमेशा बोलते हैं। वापस सा रिपीट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एक ही बार लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2। अरे ये तो आपने थोड़ी देर पहले खुद ही बता दिया था मुझे। 4/3 बिलोंग्स टू Q एंड -2 डज नॉट बिलोंग टू N। उसी तरह से इसको कैसे पढ़ेंगे? P, सेट P इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल P। इस लाइन को पढ़ते हैं सच दैट P इज एन ऑड नंबर। अब उसने क्या बोला? राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक सेंटेंस इन वर्ड। हमने जो बोला वही लिखेंगे और जैसे ही लिखेंगे हमको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, आपने ये तो सारे ही बोल दिए और ये आपको अच्छे से आ गए हैं। इनको एक बार और से पढ़ लीजिएगा। अब राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड और बाय रूल मेथड। आपको कोई भी 2 लिखने बोला, हमने आपको 5-5 दे दिए। एक बार देख लीजिए
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, उसको सॉल्व करेंगे हम। अब आपका 4th क्वेश्चन, राइट, ये सारे आपको लिस्टिंग मेथड में लिखने हैं। सो पहला क्वेश्चन है ऑल मंथ्स ऑफ इंडियन सोलर ईयर। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, हमको ईयर बोले बराबर और मंथ बोले बराबर जनवरी फरवरी याद आ जाता है, बट उसने आपको जनवरी फरवरी नहीं बोला, इंडियन ईयर बोला। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, आपको ये सारे याद करने हैं, राइट, और ये याद होने भी चाहिए। दूसरा है लेटर ऑफ द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। बेटा सीधा दिखाई पड़ रहा है, सीड कॉमा ओ कॉमा एम कॉमा ई कॉमा, ठीक है, COL, आपको दिखाई पड़ा आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। फर्स्ट स्टैंडर्ड में सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ते हैं, अगर भूल गए हैं तो याद कर लेते हैं। नोज, ईयर्स, आइज, टंग एंड स्किन। प्राइम नंबर्स 1 to 20। अभी हमने देखा 2 से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे वो नंबर्स हैं जो अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ज्योग्राफी, राइट, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। आराम से आता है आपको ये क्वेश्चन तो। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। अब रूल बनाना है, मतलब सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ऐसा लिखना है आपको। सिंपल है बच्चे, नंबर को देखो, ध्यान से देखो, आराम से देखो, 1, 4, 9, 16, 25, 36, अरे स्क्वायर लिखे जा रहे हैं, करेक्ट। द मोमेंट आपने पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद अपने आप आपको आंसर स्ट्राइक कर देगा। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is equal to n square and belongs to natural number and less than 10, right? B, set of all से कैसे दिया हुआ, 6, 12, 18, 24, 30, आपको मल्टीपल्स ऑफ 6 दिया है। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is equal to 6 and belongs to natural number and n is less than 9. Why less than 9? Right? Because आपने देखा 48 पे उसने ख़त्म कर दिया है, राइट। SMILE, अब इससे आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, स्माइल, राइट, माइल्स, मिसाइल। अब तो ये वर्ड बिल्डिंग का गेम हो गया, आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, बट हाँ हर वर्ड को एक बार तो लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वीक, डेज ऑफ द वीक, AET, इसका वर्ड बनाना है। मुझे तो टी बहुत पसंद है तो मैं टी बनाऊंगी, आपको ईट और या एट पसंद है तो आप वो बना लीजिए, या आप नया कोई वर्ड ढूंढ के निकालिए। अब ये क्या है, ये भी एक सेट दिख रहा है, यस, जो हम खेलते हैं हर जगह हमको सेट्स दिखते हैं और ये उसके एलिमेंट्स हैं। लूडो सेट है। आपने सेट चैप्टर का पहला एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस हंसते मजाक करते खुश होते हुए पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डालेंगे आगे के क्वेश्चंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and do write comments. I am also learning along with you when I do this work. Your comments help me to do my work better. Thank you.